যদিও নতুন কিন্তু নতুন হৈ আপোনালোক সকলোকে কৈছো দেই আজি লাইন নাই এয়াই হল আমাৰ অসমত চৰকাৰ চলি আছে তেওঁলোকে কৈছিলে নহয় 24 ঘণ্টা আপোনালোকে লাইন পাব এতিয়া আপোনালোকে ৰাইজে চক 24 ঘণ্টাত আমি কেই ঘণ্টা লাইন পাইছো আজি মিটিঙত আমি কথা ক'বলগীয়া হৈছে লাইন নাই ইয়াত এই অৱস্থা আমাৰ দুখীয়া ৰাইজক তেওঁলোকে একোটো দিব পৰা নাই এই ইলেক্ট্ৰিচিটিটো দিব পৰা নাই যিটো কাৰণ আমি পইচা দিব লাগে হয় নহয় বিলটো ফ্ৰীকে দিছে জানো বিলটো ফ্ৰী নহয় বহুত টকা বিল হয় আজিকালি পইচা দিবলগীয়া হৈছে এই চৰকাৰে এনেকৈ চলাই আছে গতিকে এই চৰকাৰক অতৰাবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব সমাজবাদী দলৰ আমাৰ সিম্বলটো হল কি চাইকেল সকলোৱে গম পাইছে নহয় আমাৰ চাইকেল মানুহৰ ঘৰত মটৰচাইকেল নাথাকিব পাৰে গাড়ী নাথাকিব পাৰে কিন্তু চাইকেল সব মানুহৰ ঘৰত আছে হয় না নহয় সকলো মানুহৰ ঘৰত চাইকেল আছে গতিকে আপোনালোকক সকলোকে এটাই অনুৰোধ জনাও যে এই যি এমচিএলএ ইলেকশ্যন হ'ব আৰু আপোনালোকে সদায় বহু বা বেলেগ বেলেগ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিলে এইবাৰ নিজৰ আপোনালোকৰ ভতিজা নুৰ ইছলাম আছে সকলোৱে আপোনালোকক চিনি পায় তেখেতক চিনি পায় গতিকে নিজৰ মানুহ এজনক জিকাওক যাতে ৰাইজৰ যিবিলাক সমস্যা আপোনালোকৰ যিবিলাক ঘৰুৱা সমস্যা এই সমস্যাবিলাক যাতে ৰাস্তা পদূলি হওক হস্পিটেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন যিবিলাক সমস্যা আছে সমস্যাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কুকুৰাঝাৰ যাব নালাগে ওচৰতে মানুহ আছে হয় নে নহয় গতিকে নিজৰ মানুহজনক এবাৰ আপোনালোকে চাইকেলৰ ছবিত ভোট দি জিকাব লাগিব জিকাব পাৰিব নাই কওক কওক পাৰিব পাৰিব মই এটা স্লোগান দিওঁ জিন্দাবাদ কব নুৰ ইছলাম ডাঙৰীয়া এই মাতটো শুনাই নাই আৰু দৌলে শুনা লাগে নুৰ ইছলাম ডাঙৰীয়া নুৰ ইছলাম ডাঙৰীয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইটো আৰু যিসকল মানুহে আজি মিটিঙত আহিব পৰা নাই আমাৰ মানুহে কি কাৰণে ভয় কৰে যে মিটিঙলৈ যাম কিজানি মোৰ এইটো আঁচনিটো কাটি দিব নেকি হয়নে নহয় যে মোৰ এই আঁচনিটো পাই আছো চৰকাৰী সুবিধাটো কাটি দিব নেকি ভয়ে ভয়ে মিটিঙলৈ অহা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ মনটো কিন্তু ইয়াত আছে তেওঁলোকে ভাবিছে নুৰুল ইছলাম ভাইক এবাৰ আমি জিকাব লাগিব হয়নে তেখেতক আমি জিকাম বুলি বহু মানুহে ভাবি আছে আৰু এই ৰিপৰ্টটো কিন্তু আমি যদি গুৱাহাটীত আছেও এই ৰিপৰ্টটো আমালৈ আহি আছে যে তেখেতে বহু ভোটত জিকিব কিন্তু বহু ভোটত জিকিব বুলি আমাৰ খবৰটো কিন্তু আহি আছে আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব যিসকল মানুহ মিটিঙলৈ আজি আহিব পৰা নাই বিভিন্ন কাৰণত এই কথাখিনি গৈ আপোনালোকে তেখেতসকলক কিন্তু ঘৰে ঘৰে ক'বগে এই এমচিএলএ নিৰ্বাচনত আমি যিবিলাক ঠাইত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিম ইয়াত হ'ব এইজন প্ৰাৰ্থিত্ব আমি মই ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে অসমৰ সভাপতি হিচাপে কৈছো আমি তেখেতক আমি প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা দলীয় ফালৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছো গতিকে সময়ত যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময় হ'ব তেখেতে প্ৰাৰ্থিত্ব হৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব নিজৰে এটা ঘৰৰ ল'ৰা আহি আছে হয়নে তেওঁক আপোনালোকে জিকাব লাগিব আৰু যেতিয়া ভোট দিবলৈ যাব আপোনালোকে ক'ত ভোট দিব ঠিক আছে একদম চাইকেলৰ ছবিত ভোট দিব চাইকেলৰ ছবিত ভোট দিব আৰু এতিয়া ইলেকশ্যনৰ আগত এই যে বৰ্তমান যি শাসনত চৰকাৰ আছে তেওঁলোকেই হওক বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহে আহি পেলাই বহুত কথা মিঠা কথা ক'ব কিন্তু বহুত মিঠা কথা ক'ব বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিব এইটো দিম বহুত কথা ক'ব গতিকে কোনো কথাত ভুল নাযাব আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব যে আমি চাইকেলৰ ছবিত আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰাত আমি এবাৰ জিকাম আৰু এইখিনি কথা আপোনালোকৰ ওচৰত আমি ক'বৰ কাৰণে সমাজবাদী দল এটা বহুত ডাঙৰ দল ভাৰতবৰ্ষৰ তৃতীয় বৃহৎ এটা ৰাজনৈতিক দল আমাৰ লগত এই আপোনালোকক লগ পাবৰ কাৰণে আহিছে সমাজবাদী দলৰ অল ইণ্ডিয়া যিজন নেশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী তেখেত হ'ল আমাৰ প্ৰফেচৰ ভুৱন যোশী ডাঙৰীয়া তেখেতে ল কলেজৰ প্ৰফেচাৰ এই উকিলবিলাক যে পঢ়াই যে এই এখেতে পঢ়ায়
গতিকে যে বহু ডাঙৰ মানুহ আপোনালোকৰ ওচৰত আজি আহিছে, কি কাৰণে আহিছে? যে এনেকুৱা এজন নিকা ভাৱমূৰ্তি ভাল মানুহক আমি জিকাই ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ আগবঢ়াই দিব লাগে। আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আছে তেখেতক ক'ব পাৰিবনে? জিকাব পাৰিবনে? আমাৰ যিজন মূল লিডাৰ সেইজনৰ নাম কি জানেনে? বৰ্তমান নেজানে চাগে। তেখেতৰ নাম হ'ল অখিলেশ যাদৱ। অখিলেশ যাদৱ হ'ল সৰ্বভাৰতীয়, তেওঁ হ'ল সভাপতি। তেখেতৰ পৰিবাৰৰ নাম হ'ল ডিম্পল যাদৱ। দুইজন হ'ল লোকসভাৰ মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দুইজন হ'ল সাংসদ, মানে MP, দুইজন হ'ল MP। গতিকে মই এটা শ্লোগান দিম নেকি তেওঁলোকৰ নামত? কিমান দূৰলৈকে পাই চাওঁ বাৰু। দিল্লী লক্ষ্ণৌলৈকে শুনাকে ক'ব পাৰিবনে? পাৰিব নাই ৰাইজে? চাওঁ আপোনালোকৰ ইয়াত বৌপাৰাত কিমান মানুহৰ মাত জোৰ আছে চাওঁ। এইটো বৌ বেছি আছে, বৌ বহুত মানুহ আছে, বৌ আছে। গতিকে আমি চাওঁ বৌ কিমান জোৰ আছে। গতিকে অখিলেশ যাদৱ, এই মাতটো সৰু হৈছে, আপোনালোকে মতাই নাই দেখোন, হাঁহি আছে। লাজ কৰিলে নহ'ব। অখিলেশ যাদৱ, अखिलेश यादव। पुल दो लोगों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे तेंगलुक मुशाहरी जी जो कि इंचार्ज हैं बीटीसी के, मोहिंदर वर्मा जी जो कि चिरांग के हमारे प्रेसिडेंट हैं, शहनाज अली जी जनरल सेक्रेटरी हमारे बीटीसी के, और रानेंद्र बर्मन जी सेक्रेटरी हैं बीटीसी के, और आप सबके प्यारे न्यारे और आपके अजीज जो इस क्षेत्र का आप लोगों की मुस्कान, आप लोगों का हौसला और आप लोगों का संघर्ष बता रहा है कि नए जो उम्मीदवार हैं हमारी पार्टी के, नूर इस्लाम साहब, अब ये आप लोगों का नेतृत्व करने जा रहे हैं। ये आप लोगों की एकता और ताकत, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का जो जोश है और ये माताओं और बहनों की जो आशीर्वाद है, ये बता रही है कि नूर इस्लाम इस बार यहाँ भारी मतों से वोट जीतने जा रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, मैं लखनऊ से आया हूं, मेरा नाम प्रोफेसर भुवन जोशी है। अगर आप टीवी देखते होंगे तो मुझे जरूर जानते होंगे, क्योंकि मैं टीवी में अपनी पार्टी के लिए बहस करता हूं। मैं राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और रोज टीवी में आप लोगों के लिए बहस करता हूं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। इस देश में 10 साल से, और मैं कहना चाहता हूं जो हेमंत बिस्वा जी की सरकार चल रही है, इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आपके आ रहे हैं, कहना चाहता हूं अगर किसी पे जुल्म और सितम सबसे ज्यादा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे मैं उत्तर प्रदेश हो चाहे वो आपका आसाम हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म और सितम करने का काम करा है और वो हमारे मुस्लिम भाई बहनों पे करने का काम करा है। अगर भेदभाव हो रहा है सबसे ज्यादा, तो मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके मकानों को ढाया जा रहा है, आपकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ये देश और प्रदेश में अगर आप टीवी देखते होंगे, समाचार पढ़ते होंगे तो देखा होगा। और मैं कहना चाहता हूं हमारी जो राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी, उसके 37 सांसद हैं। जब आप लोगों के लिए वक्फ बिल लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा, तो हम ही लोग थे, माननीय अखिलेश यादव, डिम्पल यादव थे, जिन्होंने कहा था कि हमारे 37 के 37 सांसद आप लोगों के वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े हो गए। हम उस राजनीतिक दल से आते हैं। अगर मुस्लिमों का कहीं पर पसीना बहा है तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी जो स्वर्गीय हो गए, माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां पर खून बहाने का काम करा है। आप लोगों के हर लड़ाई को लड़ने का काम उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक अगर कोई पार्टी कर रही है तो केवल समाजवादी पार्टी कर रही है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से कार्य की बात करें, अभी आपने देखा था, मैं बचपन में खेल खेलता था लुका छिपी का। जो माताएं बहनें हमारी उम्र की होंगी वो जानती होंगी लुका छिपी का खेल होता है। लेकिन आजकल तो बच्चे मोबाइल में बिजी हैं, मोबाइल के बहाने सब खेल भूल गए हैं। ऐसा ही लुका छिपी का खेल अभी मैं देख रहा था बिजली आप लोगों के साथ कर रही है।
और जब बिल देने की बारी आती है, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, लंबा चौड़ा बिल आपको दिया जाता है, लेकिन जब बिजली देने की बात आती है तो ये सरकार आप लोगों को बिजली नहीं दे पाती है। महंगाई का क्या आलम है, मैं बताना चाहता हूं। जो सिलेंडर आप यूज करते थे, आज से 10 साल पहले की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है आपको पता है। महंगाई का चीनी, दूध, दही, इस पर टैक्स लगाने का काम, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे दूध दही खाते थे, इन पर भी टैक्स लगाने का काम अगर किसी सरकार ने करा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने करा है। और मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे को सिखाया गया था कि 3 दान होते हैं, ये बड़े सोच समझ के करने चाहिए। पहला दान होता है रक्तदान। हमें खून ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो समाज की भलाई करता हो, उसको रक्तदान कहते हैं। दूसरा होता है कन्यादान। हमें अपनी लड़की को वहां शादी करना चाहिए जो घर परिवार का सम्मान होता है। अगर उसका सम्मान है तो कल को आपकी बेटी का सम्मान भी वो रख पाएगा। और वो सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो वो होता है मतदान। जो हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य तय करती है, वो केवल मतदान करती है। और राजा को रंग और रंग को राजा बनाने का अधिकार कोई देता है तो वो केवल मतदान देता है। मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे साथी हैं, किस प्रकार इस्लाम साहब के लिए आप लोगों के मन में आदर, प्यार, प्रेम है। इतनी उमस हो रही है और आप 2 घंटे से बैठे हैं, इससे पता चलता है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे युवाओं ने, हमारी मातृशक्ति ने, हमारी बहनों ने फैसला कर दिया कि इस बार उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का साइकिल के चिन्ह पर ये इस्लाम साहब जीतने का काम करेंगे। और लगातार 24/7 आप लोगों की सेवा का संकल्प लेकर हम लोग इनको मैदान में उतारने जा रहे हैं। आप लोग न केवल इनको वोट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्टाचारी पार्टी भी है जिन्होंने 10 साल से लूटने का काम करा है। वो आएंगे, आपको नोट देंगे, आपके वोटों को खरीदने का काम करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप नोट उनसे बेशक ले लेना, लेकिन वोट अपने भाई इस्लाम को दे देना, क्योंकि वो नोट भी आपके द्वारा आपसे लूटे हुए नोट हैं। और वोट देने का काम इस्लाम भाई को करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोटों की खरीद करती है। पूरे देश में देखने का काम करा होगा आप लोगों ने, किस प्रकार ये सरकारों को गिराने का काम करते हैं, किस प्रकार हमारी मस्जिदों पर ये लोग अटैक कर रहे हैं, किस प्रकार हमारे लोगों की दुकानों को छीनने का काम। মই দেউতাই লিখা গান এটা গাওঁ দেই। মই গাইছিলো এইটো গান টিভিত। লিহিরি ফাগুন বনে মাতে লিহিরি ফাগুন বনে মাতে রাগি লাগি মোটরিয়া, রাগি লাগি মোটরিয়া, শীত মোরাই যায়, শীত মোরাই যায়। হুসেনাই খুনি সনে লিহিরি ফাগুন বনে মাতে লিহিরি ফাগুন বনে মাতে। থ্যাংক ইউ। Stay informed, stay ahead. News NE 365.